آزادی اظہار رائے کا احترام مہذب قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ عمران نیازی نے نوجوانوں میں عدم برداشت اور انتشار کا زہر بھر دیا۔ پی ٹی آئی دور میں صحافیوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے صحافیوں پر غنڈہ گردی انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں عدم استحکام بڑھے۔ یہ شخص پہلے اپنے وعدوں اور نظریات سے بھاگ گیا، پھر آئی ایم ایف پروگرام سے، اور اب عدالتوں سے بھاگ رہا ہے۔ عمران خان کا عدالتوں سے بھاگنا بزدلی کی انتہا ہے۔ بزدل شخص عدالت کو اس لیے تلاشی نہیں دیتا کیونکہ یہ مجرم ہے۔ یہ آدمی نہیں چاہتا کہ غریب عوام کو مہنگائی اور معاشی دباؤ سے نجات ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ فورن ایجنٹ، گھڑی چور، گیدڑ، بزدلی اور خوف کا نمونہ عبرت بن چکا۔ عمران خان نے توشہ خانہ لوٹ مار کی، فرد جرم سے بچنے کے لیے ٹانگ پر پلستر باندھ دیا۔ ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرنے والا ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ملک کا جو بھی ہو اس کی جان بچ جائے۔ پیشیوں کے بغیر ریلیف، ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مسلم لیگ نون ترقی اور عوامی خوشحالی کا دوسرا نام۔ الیکشن میں جیت کے لیے اتریں گے۔ ترازو کے پلڑے برابر نہ ہو تو صرف سلیکشن ہوتی ہے۔ جس کی سیاست لاشوں کی محتاج ہو جائے تو جان لو کہ اس شخص کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ شخص جان چکا کہ شکست اس کا مقدر بن چکی ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ سیاسی استحکام سے ہی ترقی ممکن ہے۔ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے توڑی۔ ناتجربہ کاروں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ معیشت کی بہتری کے لیے برآمدات کو بڑھانا اور ٹیکس نیٹ ورک بہتر کرنا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ کل سے ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں مہم ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مہم چلائی جائے گی۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے زیر تعمیر منصوبوں کی مرحلہ وار تکمیل۔ 2030 تک وابڈا نیشنل گریڈ میں مزید 10,000 میگا واٹ کم لاگت اور ماحول دوست پن بجلی کا اضافہ ہو جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل سے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت میں بھی 12 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا۔ ترجمان وابڈا۔ بین الاقوامی پاک آرمی ٹیم اسپرٹ کی اختتام پذیر۔ آرمی چیف کی ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف۔ بہادری، باہمی تعاون اور قابلیت کے اوصاف پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ان اوصاف کا مظاہرہ کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر۔ گلگت بلتستان میں واقع برف سے ڈھکے برزل پاس کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ برزل پاس پاک فوج اور عوام کے لیے اہم مقام۔ یہ علاقے کے 15,000 افراد پر مشتمل آبادی کے لیے واحد راستہ ہے۔ راستے کو کھولنے پر علاقہ مکینوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ پوری پاکستانی قوم ترکیہ کے عوام کے شانہ بشانہ۔ زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر دوسرا خصوصی طیارہ لاہور سے روانہ۔ سامان میں شامل 1200 خیمے ادانا میں متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ترجیحی بنیادوں پر 70,000 خیمے اور 1 لاکھ کمبل اور ادویات ترکیہ بھیجے جائیں گے۔ مقبول انقلابی شاعر حبیب جالب کو ہم سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری کی بازگشت آج بھی ہر سو ہے۔ جالب اپنی انقلابی سوچ کے تحت آخری دم تک سماج کے محکوم عوام کو اعلیٰ طبقات کے استحصال سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری۔ صہیونی قابض فوجیوں کے ہاتھوں نابلوز میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ علاقے میں تاحال کشیدگی جاری ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ کئی روز کے دوران متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں پولن سیزن کے قبل از وقت شروع ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے الرجی کی روک تھام کے لیے احکامات جاری۔
اسلام آباد راولپنڈی میں مارچ کے تیسرے ہفتے میں پولن اپنے عروج پر پہنچنے کا امکان. پولن انرجی میں مبتلا افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلوں سے بھرپور پاکستان سپر لیگ سیزن 8 لیگ مرحلے کا آخری روز. آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں دن 2 بجے راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گی. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز شام 7 بجے لاہور میں مد مقابل ہوں گی. ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. اوپر کی ایوریج سے آپ روز جیت سکتے ہیں. عثمان خان پی ایس ایل سیزن 8 کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ. ملتان سلطانز کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 9 رن سے کامیابی. ملتان نے 3 وکٹوں پر 262 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف بنا کر تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا ڈالا. ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 8 وکٹوں پر 253 رنز بنا سکی. عباس آفریدی کی شاندار بولنگ پی ایس ایل سیزن 8 کی پہلی ہیٹرک کر ڈالی. گلیڈیٹرز ایونٹ سے باہر ہو گئے. پشاور زلمی کی ٹیم پلے آف میں پہنچنے والی چوتھی ٹیم بن گئی. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. اور لاہور میں جشن بہارہ کی رنگارنگ تقریبات کا آخری روز. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام مختلف کھیلوں کا انعقاد. ٹور ڈی لاہور سائیکل ریس میں ملک بھر سے سینکڑوں سائیکل سواروں نے حصہ لیا. میراتھن فن ریس اور ویل چیئر ریس میں لوگوں کی بھرپور شرکت. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں محمد مزمل حسین اور میں ہوں عروج فاطمہ. ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبر نامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا احترام مہذب قوموں کی پہچان ہوتی ہے. بدقسمتی سے عمران نیازی نے نوجوانوں میں عدم برداشت اور انتشار کا زہر بھر دیا ہے. لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی اور غنڈہ گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جو بھی عمران نیازی سے سوال کرتا ہے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پی ٹی آئی دور میں صحافیوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں. محمد شہباز شریف نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود قوم تک سچ پہنچانے والے صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. حکومت صحافی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں عدم استحکام بڑھے. سڑکوں پر افراتفری اور فتنہ و فساد اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. یہ شخص نہیں چاہتا کہ عوام کو مہنگائی اور معاشی دباؤ سے نجات ملے. ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کا عدالتوں سے بھاگنا بزدلی کی انتہا ہے. یہ شخص پہلے اپنے وعدوں اور نظریات سے بھاگ گیا، پھر IMF پروگرام اور اب عدالتوں سے بھاگ رہا ہے. بزدل شخص عدالت کو تلاشی نہیں دیتا کیونکہ یہ مجرم ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے بدترین انتقام کا سامنا کیا. ہم اپنے بیٹے بیٹیوں اور بہنوں سمیت جھوٹے مقدمات میں عدالتوں اور قانون کے سامنے پیش ہوئے. مسلم لیگ نون کے رہنما سزائے موت کی چکیوں میں رہے اور ہیروئن جیسے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان IMF سے کیے گئے اپنے ہی معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور غذائی خود کفالت پاکستان کو بہت سے معاشی مسائل سے بچا سکتی ہے. لاہور میں زرعی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی اجناس کی عوام تک فراہمی، فوڈ چین کی بہتری اور دیگر مسائل کو جامع حکمت عملی کے تحت مؤثر طریقے سے حل کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان زرعی اجناس درآمد کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کپاس کے کاشتکاروں کو فصل کے منافع بخش قیمت کی ادائیگی یقینی بنائے گی. محمد شہباز شریف نے زرعی ٹاسک فورس کو کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے کا ٹاسک فراہمی کے لیے تصدیقی عمل شفاف اور مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی. وزیر اعظم نے جعلی زرعی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے شروع کی جانے والی اصلاحات پر کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں کپاس کی امدادی قیمت سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی فوری اور طویل مدتی اقدامات پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ایک جنرل بات ہے کہ تیاری صحیح نہیں ہے، ٹریننگ صحیح نہیں ہے انیومریٹرز کی، جو بیٹا چھوڑ دو یار، یہ ہر وقت ہم صحافیوں میں بھی اتنی او بھائی، ابھی میں نے ٹالرنس کی بات کی ہے، وہ لاہور سے نہیں بات ڈائریکشن دو صحافی نہیں، اوکے، معذرت آپ لوگ بھی تو ناراض ہو گئے یار، آرام سے۔ اچھا جی، میں جواب دے رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو ٹیبلٹس ہیں جو انہیں دی گئی ہیں، اور یہ میں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے اس ٹیم کو ہم نے ادھر دکھایا، میرے ساتھ شرجیل نام میمن صاحب بھی تھے، مرتضی وہاب صاحب بھی تھے، کہ فار ایگزامپل میں اس علاقے کا انیومریٹر ہوں، یہ گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا ہوں، ادھر میں مجھے کہا گیا کہ جی تمہاری یہ گورنر ہاؤس اور اس کے جو 200 میٹر کی ایریا یہ تمہاری ہے۔ میں جب ادھر آ کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ میرے ٹیبلٹ میں میری وہ جگہ ہی نہیں بتاتے، وہ مجھے بتاتے کہ یہ میرے بلاک سے باہر ہے۔ تو میں نے کہا یہ، اور ان کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے ایکچوئل سائٹ پہ لائیو دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے مانا کہ یہ پرابلم ہے، زیادہ نہیں ہے کچھ علاقوں میں نے کہا ایک جگہ پہ بھی ہے تو بہت زیادہ ہے، کہتے ہم اس کو بعد میں درست کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے پہلے بھی کر سکتے اگر ہمیں حکم ملے گا۔ تو پہلی چیز میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے پرسوں ایک اور خط لکھا ہے، اس میں کہا سب سے پہلے تو آپ ان ٹیبلٹس کو درست کریں کہ یہ اپنے بلاک کو دکھائیں۔ اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ جب میں ادھر کھڑا ہوں گا تو میں اس کو انیومریٹ نہیں کروں گا، گورنر صاحب اگر ادھر رہائشی ہیں میں ان کا نام نہیں لکھوں گا، اور کوئی اور انیومریٹر ادھر آئے گا نہیں، کہ اس لیے اس کو کہا ہی نہیں کیا کہ ادھر جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ نہیں ہم بعد میں یہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ، میں نے 2017 میں بھی کہا تھا کہ جی میرے گھر پہ اگر آتے ہیں، میرے سے ڈیٹا لیتے ہیں، تو اس کی ایک کاپی مجھے ضرور دیں کہ مجھے کل پتہ چلے کہ میرا کیا ڈیٹا انٹر کیا ہے۔ 2017 میں بھی انہوں نے نہیں کیا، اس دفعہ میں نے کہا ڈیجیٹل سینسس ہے، میں نے ایک تجویز دی کہ میرے گھر پہ آئیں، آپ کے گھر پہ آئیں، کسی کے گھر پہ بھی، آج کل فون وغیرہ ہر ایک کے پاس ہے، آپ مجھے ایس ایم ایس پہ جو انٹری کر کے میرے گھر کی ساری ڈیٹیل دے دیں کہ جی 4 ایڈلٹس ہیں، 10 بچے ہیں، جو بھی ڈیٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل سینسس ہے، ہر چیز سرور پہ جاری ہے، ایک یوزر نیم اور پاسورڈ جیسے کہ آپ سیلف انیومریشن کرتے ہیں اس پہ وہ دیکھ دیں سب کو، اور ہر ایک دیکھ لے گا اپنا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پالیسی ڈیسیشن چاہیے یہ کرنے کے لیے، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ تیسری چیز میں نے انہیں کہی کہ دیکھیں ہمیں اس سینسس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، اس سینسس کو ایسا کرنا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہو ہر ایک کے لیے، اور دوبارہ 2017 والی کنٹروورسی نہیں پیدا کرنی ہے۔ تو آپ نے جو سینسس کا علاقہ ہے اس میں ڈسٹرکٹ سینسس کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کو ایکسیس دیں ان سب ٹیبلٹس کی جو اس کی ریجن میں ہے، ڈپٹی کمشنر کو ڈسٹرکٹ کی، کمشنر کو ریجن کے اپنے ڈویژن کی، اور چیف سیکرٹری کو صوبے کی، تاکہ اگر مجھے اعتراض ہو تو میں ان لیولز پہ گریونس، ابھی اس وقت میں جا کے کسی سے شکایت کروں تو اس کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، ڈیٹا تو وہ انیومریٹر کے پاس ہے اور دوسرا اسلام آباد میں، تو وہ کہاں سے میری چیک کرے گا، بات کس سے کرے گا؟ یہ لگا دے گا ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ جی اب میں نے دے دیا آپ کی نیت۔ اگر میرے پاس خود وہ ڈیٹا ہوگا تو میں اسی وقت دیکھ لوں گا کہ واقعی کامران خان ٹسوری صاحب کی قواعد صحیح داخل ہیں کہ نہیں ہیں، اور میں انہیں درست بھی کر سکوں اور جواب بھی دے دوں۔ بیٹا یہ میں سیریس جواب دے دوں اس کے بعد، ابھی میں بہت لمبا ہے، ابھی تو شروع ہوں سنیں، یہ بہت ضروری ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تیسرا یہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ ضرور دیں، انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پالیسی ڈیسیشن کی ضرورت ہے، اور شاید قوانین میں بھی تھوڑی امینڈمنٹ کرنی ہوگی۔ چوتھی چیز میں نے کہی کہ ہمیں بہت زیادہ خدشات ہیں کہ لوگوں کو گننا چاہیے، جو جہاں پہ ہے اسے گننا چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کی آبادی لیٹ سے 300 ملین ہے، میں ایسے ہی نمبر دے رہا ہوں اوبیسلی، تو اس میں سے 290 ملین پاکستانی شہری ہیں، 10 ملین ایسے ہیں جن کو شناختی کارڈ نہیں مل سکتا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، کوئی نائی کاپ ہو سکتا ہے، باہر کا ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے،
कोई वो जो होते हैं इमिग्रेंट रेफ्यूजी कार्ड्स होते हैं वो हो सकता है, वो सारे डेटा होना चाहिए। तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि आपके पास ये डेटा आ जाता है, जब ये सारी सेंसस हो जाए, महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, मुकम्मल करने में ये प्रॉपर तरीके से, ये सारी डेटा आप नादरा के हवाले कर दें। नादरा वाले भी बैठे थे उधर, नादरा के पास अब आ जाएगा कि इस इलाके में, इसलिए आप शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं नहीं है उसका लिख रहे हैं नहीं है, और उसका रीज़न दे रहे हैं गुम गया या नहीं बनाया है, जो भी, या मैं अहल नहीं हूँ, वो आप लिखते हैं। नादरा से कहें कि जो भी अहल है जाके उसका शनाख्ती कार्ड बनाओ। आप पूरे पाकिस्तान में 6 महीने दो उनको भले, कि वो एक एक जगह जाए, उनका शनाख्ती कार्ड बनाए, उनके बच्चों की बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करें। आपके पास एक डायनामिक पॉपुलेशन आ जाएगी हर वक्त के लिए। टाइम लगाए ना, एक काम करें, अच्छी तरह करें यार, ज़रूरी है कि आप हर दफ़े ख़राब काम करें जिसमें कोई यकीन ना करे। जब उसमें 6 महीने लगे, जो टाइम भी लगे, वो हो जाए मुकम्मल, उसके बाद आप सेंसस का ऐलान करें जिसमें पूरी डिटेल होगी कि जी पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 120 मिलियन अडल्ट हैं, उन सब के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, 170 या 75 मिलियन बच्चे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन बे फॉर्म सारे रजिस्टर्ड हैं, और 5 मिलियन आपके पास ऐसे हैं जो शनाख्ती कार्ड के अहल नहीं है, और उनका पता हो कहाँ कहाँ वो रहते हैं। ये डेटाबेस आपके पास कंप्लीट हो, आगे जाके आपकी डायनामिक पॉपुलेशन बनेगी। जब नया बच्चा पैदा हो, आप कवानीन को और सख्त, इस वक्त कवानीन है लेकिन को और सख्त करें, इंश्योर करें कि वो बच्चा रजिस्टर हो, ताकि उसी वक्त पता चल जाएगी जी हमारे मुल्क में आज जो है 2000 की पॉपुलेशन ऐड हुई। अगर कोई डेथ हो उसको भी लाजिम करें कि वो रिपोर्ट हो, और नादरा में चला जाए, वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और इस पर पेनल्टीज डालें कि अगर मेरे घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है और मैं नहीं बताता 2 या 3 महीने में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। अगर डेथ होती है और नहीं रिपोर्ट होता उसमें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस, इतना ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। और ये मुझे नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने वज़ीर आज़म साहब को उस ख़त की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को ख़त लिखा है परसों, मैं मंडे को उनको फ़ोन करूँगा, और मैंने ये भी कहा, और मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा दें। इसलिए हमें बाद में कहा यह जाता है, वो 2017 में भी ये आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे। वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो, और इसलिए हमने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करनी हुई तो वो भी, मेरी निसार खोड़ो साहब से कल रात को बात हुई इस सिलसिले में कि हम वो भी करें। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ठीक गिना जाए। आपने इंतखाबात की बात की, इंतखाबात जिस तरीके से होने, देखें ये 2017 पे भी तो इंतखाबात हो गए ना, सेंसस पे इतराज़ात हैं हमें। मैं आपको अभी बड़ा मैंने डिटेल में, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो CCI की मीटिंग्स मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी रीजनिंग आपको बता सकता हूँ। CCI में मेरा एतराज़ ये था कि सिंध में 8.85 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, घराने, इस तरीके से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमारे घरानों की एवरेज साइज 5.5, KPK की 8, बलूचिस्तान की 7.8 थी, 7.7 थी, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट, और पंजाब की 6.5, तो हमारी 5.5। और फिर हमने कहा कि उसके साथ साथ यूनिसेफ वाले एक मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे करते हैं, जो यही पूरे घर घर पे नहीं जाते, लेकिन सैंपल लेके एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अंदर हमारी 6.8 है, पंजाब की 6.3 है, जो कि 6.5, हमारी 6.8 से घट के 5.5, और KPK की भी जो मिक्स सर्वे थी उससे ज़्यादा एक्चुअल। हमने कहा यार सिर्फ हमें एवरेज कर दो बाकी सारे सूबों का, वो एवरेज करो तो हमारी आबादी 62 मिलियन बनती है, जो कि 47.5 आपने बताई हुई है। बहुत सिंपल, ये दिया तो उनके मुंह बंद हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने कहा यार ये अब यूँ करो इस, और मैंने डिसेंट किया था, यानी हुकूमत सिंध ने, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता था, मेरी काबीना ने मुझे यही डायरेक्शंस दी कि आपने ये सेंसस नहीं मानना है, तो ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि हम दोबारा कहें कि हमने ये सेंसस नहीं मानना है। ये बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है जो हमने रखा है, और मैं चाहूँगा कि अगेन आप मीडिया वाले ये मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करें। हम चाहते हैं सेंसस हो, हम चाहते हैं ठीक हो, हम चाहते हैं हर एक को गिना जाए, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी है और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उसकी डिस्टिंक्शन हमें पता हो। सिंपल। एक मिनट पहले लेडी से कर लें। सर प्लीज ये बताइएगा कि गवर्नर सिंह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची गेम्स के जरिए जो कराची को एकदम से जगाया है, उसकी
मेरी बहन, ये हमारे साथ मिलके ही होता है KMC और ये और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुकूमत सिंध के साथ, और कराची की रौनकें अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया था रौनकें बहाल हो गई थी। ये कराची के अंदर ही जहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, PSL शुरुआत कराई। मैंने कहा कि इधर गेम्स करो, वो पहले बाहर होते थे मुल्क से, कराची में शुरू हुए, पहले लाहौर में किया उन्होंने एक मैच, उसके बाद कराची में आए। इस साल तो करते सारे मैच कराची में कर लो। ये रौनकें बहाल कराची के अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। हाँ, दहशतगर्दी का सामना हमें है और ये हुआ है, उसका हम मुकाबला करेंगे। तो इसमें कोई तफरीक नहीं है और उसको पैदा करने की कोशिश भी ना करें, इसलिए कि वो नाकाम होगी। बल्दियाती इंतखाबात होने तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं। कराची में जमात इस्लामी एहतजाज भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि बकिया 11 नशिस्तों पे इंतखाबात कराए जाए। आप तो क्या समझते हैं, सही बेस पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, कोई मुतालबा नहीं जी, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, आज वो कह रहे हैं कि गुल्लू मट राज का आगाज हो गया सिंध में। अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन बहुत ही एहतराम के साथ बहुत स्लो मूव कर रही है। इलेक्शंस हो गए, हम कहते हैं पूरे सिंध में, और आधे सिंध में तो इलेक्शन हुए हुए 8 महीने हो गए। पूरे सिंध में इस वक्त आप जो मेयर और चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, यूनियन का ये आपके टाउन कमिटीज़ वगैरह के चेयरमैन, इनकी म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन इलेक्ट करें, ये कहीं नहीं होता। ये जो अजीब गरीब, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, कम से कम 2 सीटें ऐसी थी सिंध के अंदर जिनमें इलेक्शन नहीं हो सका था। तो क्या इंतज़ार किया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तब इंतखाब होगा जब ये, पता नहीं कहाँ से नई नई मंतक लेके आते। इलेक्शन कमीशन से हमारा यही एतराज़ है कि बहुत स्लो चल रहे हैं, इमीडिएटली इलेक्शंस कराएं। जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस करें, जो उन्होंने विथहेल्ड किए हुए हैं। अजीब बात है, यानी 20 रिजल्ट विथहेल्ड किए जिसमें 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये फैसला करो भाई, भेजो उनको ट्राइब्यूनल में। हम जीते हैं, हमारी इस वक्त 96-97 सीट्स हैं। मेयर हमारा कराची का है, ये आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं। अब बाकी जो वो रोना धोना करें, और इलेक्शन कमीशन से हमें सख्त एतराज़ है कि उसको करें। मैंने आपके पहले सवाल का जवाब, जो दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया था। ये सूफियों की धरती है, ये अमन पसंद सूबा है, पूरा पाकिस्तान अमन पसंद है। अगर आपने इसको और सूबों में ख़राब किया, यहाँ आपको ख़राब करने नहीं देंगे। आपकी ज़बान, आपकी हरकत, दोनों का हिसाब किताब इधर ही होगा और हम लेंगे। ये बहुत सिंपल सवाल है। चले जी, एक मिनट बस, मेरे ख्याल से आज बहुत है, काफ़ी हो गया। और एक मिनट कर, क्योंकि ये कराची गेम्स के हवाले से आज मुनक़्क़िद प्रोग्राम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम सब मिल के CM साहब की मौजूदगी में सब जोर से कहते हैं कि इंशाल्लाह कराची खेलेगा। CM साहब आप ही कहते हैं कराची खेलेगा, इसका स्लोगन है ना। अच्छा, कराची खेलेगा जी, कराची खेलेगा, कराची खेल रहा है भाई, खेलेगा नहीं, खेल रहा है, चेंज करें और खेलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची गेम्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची के अवाम ने रवायती खेल देखा और लुत्फ़अंदोज़ हुए। रवायती खेलों का इनेकाद बाकायदगी से किया जाना चाहिए। खेलों के फ़रोग़ के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी गई हैं। शहरियों को मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ एतराज़ात का भी जवाब मिलना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद भी आपको बताएंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़ॉरेन एजेंट मुल्क में फ़साद चाहता है। मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करने की बात करने वाला मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ये शख्स गैर मुल्की साजिश के तहत खैरात के पैसे से मुल्क में आग लगाने का शैतानी खेल खेलना चाहता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता है कि मुल्क का जो भी हो इसकी जान बच जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ॉरेन एजेंट घड़ी चोर, गीदड़, बुज़दली और खौफ का नमूना इबरत बन चुका है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस शख्स ने तोशाखाना लूटमार की फर्दम जुर्म से बचने के लिए टांग पर प्लास्टर बांध लिया, फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए मासूर हो गया, टेरियान केस से फरार में सिक्योरिटी बहाना बन गई और इदारों के खिलाफ धमकियों के केस में बुजुर्ग बन गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का रोजाना एक नया बहाना, मैंने अदालत नहीं जाना, मैं तलाशी नहीं दूंगा, मेडिकल नहीं कराऊंगा, और कभी कहता है कि मेरी जान को खतरा है। दूसरी तरफ पेशी के बगैर रिलीफ, अवामी सोच के तराजू के एक पलड़े में लॉ है, दूसरी तरफ लाडला है। तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने लाहौर में PTI कारकुनों की तरफ से सहाफ़ियों और DSNG ऑपरेटर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये दरअसल गुंडागर्द इंतहा पसंद टोला है जो इक़्तिदार में होते हुए भी मीडिया को जेल में डालता था।
और नाज़रीन, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें तंजीमी उमूर और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान इश्तराकी अमल को मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद में कामयाब तंजीमी कन्वेंशन में ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत से वाज़ेह हो गया कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तरक्की और आवाम की खुशहाली का दूसरा नाम है। इलेक्शन में जीत के लिए उतरेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि तराजू के पलड़े बराबर हों तो ही सही इंसाफ होता है, दूसरी जानिब सिलेक्शन होती है। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि बदकिस्मती से सोशल मीडिया को कूड़ेदान और गटर सोच का जरिया बना दिया गया है। मुआशरे में मुनाफरत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की से पाकिस्तान में असल तब्दीली आएगी, उन्हें क़यादत की सफ़े अव्वल में लाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कारकुनान पर जोर दिया कि सोशल मीडिया की ताकत को अच्छे जज्बों और मस्बत सोच पर फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को मुस्लिम कल्चर की शनाख्त बनना है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि जिसकी सियासत लाशों की मोहताज हो जाए तो ये जान लो कि इस शख्स का हर बार नाकाम हो चुका है और वो जान गया है कि शिकस्त इसका मुकद्दर बन चुकी है। लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जल्द से जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दफा 144 सिर्फ एक रोज के लिए लगाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई रियासत की रेट को चैलेंज करे तो सख्ती करनी पड़ती है, किसी को कानून हाथों में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आमिर मीर ने कहा कि 40 किलोमीटर की मैराथन और साइकिल रेस आज लाहौर में होगी। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर पब्बी में होने वाले छठे इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इन मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 7 और 10 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक बड़ी फौज के सरबराह ने टीमों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। उन्होंने मुकाबलों को अफवाज की तरबियती मश्क और फिजिकल फिटनेस के लिए अहम करार दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बहादुरी, बाहमी ताउन और काबिलियत के औसाफ पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी इन औसाफ का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि मुकाबलों से टीम वर्क और दीगर सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। नौजवानों की सलाहियतों में निखार के साथ पेशावराना महारतों का इजहार होता है। आर्मी चीफ ने शुरका में इनामात और मेडल तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले अब बैनुल-अक़वामी टीम स्पिरिट एविएशन इवेंट बन चुके हैं। कुदरती आफात हो या नागहानी हादसात, मुसल्ला अफवाज मैदान अमल में सबसे आगे। पाक फौज के जवानों ने दिन रात अनथक मेहनत के बाद बर्फ से ढके ब्रज़िल पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया है। गिलगित से 178 किलोमीटर दूर वाक़े बर्ज़िल पास पाक फौज और आवाम के लिए अहम चौक पॉइंट है। इस जगह की ऊंचाई सतह समुंदर से 13,808 फीट बुलंद है, जो अक्टूबर से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है। इस इलाके के तकरीबन 61 गांव और 15,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी के लिए सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है। हर साल यहाँ से 50 से 60 हज़ार गाड़ियों का गुजर होता है। रवां साल पास जनवरी और फरवरी के लिए बंद हुआ था। पाक फौज के जवानों ने इस पास को खोलने के लिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड के सर्द मौसम में अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया। इस आसान इकदाम के बायस इलाका मुकीनों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान आर्मी की एक आवाज़ सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए इमदादी अशिया पर मुश्तमिल दूसरी खुसूसी परवाज़ लाहौर से तुर्की के लिए रवाना कर दी है। इमदादी अशिया में स्पेशलाइज्ड वाटर और फायर प्रूफ टेंट भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ख्वाजा अहमद हसन ने सामान की तुर्किया रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम तुर्क अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर 70,000 टेंट और 1 लाख के करीब कंबल और अद्विया तुर्किया भेज रही है। उन्होंने कहा कि NDMA वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर भरपूर अमल पैरा है। 2 से 3 एयर कार्गो फ्लाइट्स मुतवातिर 23 मार्च तक पाकिस्तान से तुर्किया रवाना की जाएंगी। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक बहरिया का एक और जहाज मुआवन कराची से रवाना किया गया। तफसीलात बताएंगे ज़मीर अब्बास।
पाकिस्तान नेवल शिप मावन में तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद के लिए 600 टन इमदादी सामान भेजा जा रहा है। इस सामान में कंबल, खैमे, दालें, चावल और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की चीजें मौजूद हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा कि ये पाक बहरिया का दूसरा समुद्री जहाज है जो तुर्किया और शाम में अपने भाइयों की मदद के लिए रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी का पहला जहाज PNS नसर जो कि 28 फरवरी को यहाँ से अराउंड 1000 टन रिलीफ गुड्स लेके और सीरिया के लिए और तुर्किया के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है। ये दूसरा जहाज जो PNS माविन है और इसके ऊपर अराउंड 600 टन्स के रिलीफ गुड्स मौजूद हैं, जिसमें विंटर टेंट्स और उसके अलावा ब्लैंकेट्स हैं और बाकी फूड आइटम्स भी हैं जो कि सीरिया और तुर्किया दोनों के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पाकिस्तान में तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद करने पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। From the beginning of the earthquake disaster in Turkey, we felt the close coordination, support, solidarity, help and duas from our brotherly country Pakistan. Pakistan government sent their search and relief teams and then they went to the earthquake affected areas and then they saved 28 lives under the debris. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए अब तक फिजाई, ज़मीनी और बहरी रास्तों से हज़ारों टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क भर में कल से 2 मरहलों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि पहले मरहले में 13 से 17 मार्च के दौरान पंजाब के 13, सिंध के 16 अजला और इस्लामाबाद में मुहिम होगी। मुहिम का दूसरा मरहला 3 से 7 अप्रैल तक होगा, जिसमें बलूचिस्तान के 12 और खैबर पख्तूनख्वा के 26 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी रखी है। वापडा नेशनल ग्रिड में पानी से बिजली पैदा करने के ज़ेर तामीर मनसूबों की मरहलावार तकमील से 2030 तक मजीद 10,000 मेगावाट कम लागत और माहौल दोस्त पन बिजली का इजाफा करेगा। सस्ती पन बिजली और पानी के इजाफी मिकदार पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और मुआशरती तरक्की में मददगार साबित होगी। इसी हवाले से राना इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। वापडा के मुताबिक मुल्क में पन बिजली की मौजूदा पैदावार तकरीबन 9,500 मेगावाट है, जो 2030 तक जारी मंसूबों की तकमील से बढ़कर 2 गुना यानी 20,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। पन बिजली के मंसूबों की तकमील से मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की मजमूई सलाहियत में भी 12 मिलियन एकड़ फुट का इजाफा होगा। वापडा के ज़ेर तामीर मंसूबों में ध्यामिन बादशाह डैम, दासू हाइड्रो पावर, मोहम्मद डैम, तरबेला का 5वां तोसीही मंसूबा, नाए गाज डैम, कुरम तंगी डैम, कच्छी कैनाल और K4 मंसूबा काबिले ज़िक्र हैं। Putting a new powerhouse on the end of an existing tunnel, the tunnel 5 through the Tarbella Dam. It's a great project because it uses the water that's already going through the tunnel, and so we need to divert the water through a new penstock and into a new powerhouse, and this will generate 1,530 megawatts of electricity for the national grid for Pakistan. जो पानी पहले 85,000 क्यूसिक फ्लो कर रहे हैं वो 85,000 क्यूसिक की फ्लो करेगा T5 में से, उसमें हम कमी करने नहीं जा रहे क्योंकि इसका लो लेवल इनलेट खुला रहेगा। दूसरा हाँ, एक नई चीज़ जो इसमें एडअप होगी वो है इसकी हाइडल, वो 1530 मेगावाट हो जाएगी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से इसकी नीड बढ़ती है वो है कि T5 टनल से बनने से इसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत की इमदाद और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की मुआवनत से पन बिजली के मंसूबे 2024 से 2030 के दौरान मरहलावार मुकम्मल होंगे। सस्ती पन बिजली और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और माशरती तरक्की में मददगार साबित होंगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के खिलाफ जम्मू में मुकम्मल हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही।
हड़ताल की कॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने दी थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की हिमायत में तमाम अदालतों में काम मुअत्तल रखा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बेबुनियाद दावे की शदीद मजम्मत की कि आज़ाद कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाक़ा है, जिसके मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरी अवाम को आलमी इदारे की निगरानी में राय शुमारी के जरिए करना है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय रहनुमाओं के ऐसे दावे तारीखी हक़ाइक़ और जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकते। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़वातीन बिलखुसूस मुख्तलिफ भारतीय जेलों में नज़रबंद ख़वातीन की हालत ज़ार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कब्जे के तहत कश्मीरी ख़वातीन को काबिज़ फोर्सेस की तरफ से गिरफ्तारियों, जिस्मानी तशद्दुद, हरासानी और कत्ल का सामना है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में किरदार अदा करने की पादाश में आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन जैसी कई कश्मीरी ख़वातीन रहनुमा को उनके घरों से दूर जेलों में नज़रबंद कर रखा है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के 52वें इजलास के मौके पर वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस ने इंटरनेशनल वुमेन यूनियन के इश्तराक से मुनक़दा एक मुज़ाकरे में कश्मीरी नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन बानी, सैयद फैज़ नक्शबंदी, सरदार अमजद यूसुफ, डॉक्टर वलीद रसूल, डॉक्टर शगुफ्ता अशरफ और फ़हीम अकरम कियानी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेंसरशिप के नए तरीक़ों के ज़रिए इज़हार राय की आज़ादी को जुर्म बनाने और तनक़ीदी आवाज़ों को दबाने की भारतीय हुकूमत की जाबराना पॉलिसियों पर तनक़ीद की। नाज़रीन, मोदी के ज़ेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब भारत में यूरेनियम की चोरी और स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान भारत में जौहरी मवाद की चोरी के 16 से ज़ायद वाक़यात पेश आ चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने अदारिये में कहा है कि भारत में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद मामूल बन चुका है। तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इनकम टैक्स छुपाने, दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी के इल्ज़ामात की आड़ में धमकाया जाता है। कश्मीर टाइम्स ने 2019 में इंटरनेट बंदिश पर मोदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की। इंतकामन मोदी सरकार ने 66 साल पुराना अखबार ही बंद करवा दिया। अमरीकी अखबार ने कहा कि पाबंदियों से बचने और मुआशी फ़वाइद की खातर भारतीय मीडिया मोदी का तर्जुमान बना हुआ है। भारतीय हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से अदालतों और सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रही है। दूसरी जानिब भारत में जौहरी और रवायती हथियारों की हिफाजत का कोई खातिर ख्वाह निज़ाम मौजूद नहीं। भारत में यूरेनियम की चोरी और स्मगलिंग के पै दर पे वाक़यात भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाक़स सिक्योरिटी इंतजामात का मुंह बोलता सबूत हैं। भारत में 2001 से यूरेनियम के नुकसान, चोरी या गुम होने के 16 वाक़यात रूनुमा हुए। भारतीय हुक्काम ने 2021 के दौरान झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम, महाराष्ट्र में 7 और कलकत्ता में 250 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की, जिसकी मालियत $573 मिलियन थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्प्रेरी रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफजूदा मवाद की चोरी समेत सिक्योरिटी खामियों से वाज़ेह है कि भारत के सिक्योरिटी मैकेनिज्म और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में संगीन खामियां हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बैनुल अक़वामी ख़बरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली जारियत और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। सहूनी क़ाबिज़ फ़ौज ने नाबलूस में मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इलाक़े में ताहाल कशीदगी जारी है। वाक़े की मज़ीद तफसील आना बाकी है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कई रोज़ से इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है और रवां साल में क़ाबिज़ फ़ौज के हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। रूसी फौज दिफाई लिहाज से अहम सरहदी शहर बाखमूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए हमले जारी रखे हुए है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लेyen के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन को असले की फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इआदा किया कि यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फिनलैंड की वज़ीर आज़म साना मारिन ने यूक्रेन का दौरा किया और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेनी सदर ने मुसलसल हिमायत और तावन पर फिनलैंड का शुक्रिया अदा किया। फिनलैंड ने बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए यूक्रेन से तावन बढ़ाने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शाम में खाना जंगी के खात्मे की अपील करते हुए कहा है कि तमाम फरीक अमन को मौका दें।
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 6 فروری کو آنے والے زلزلے کی وجہ سے شام کو ایک نئے المیے کا سامنا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے اس وقت انسانی امداد کی ضرورت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انتونیو گوتریس نے اس یقین کا اظہار کیا کہ شامی فریقین اور بین الاقوامی شراکت دار سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیے جانے والے ٹھوس اقدامات قیام امن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی کو یقینی بنانے، شامی عوام کے جائز مطالبات کو پورا کرنے اور پناہ گزینوں کی رضاکارانہ، محفوظ اور باوقار واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا وقت ہے۔ ناظرین، ترکی کی سمندری حدود میں کشتی ڈوبنے سے 5 پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی کوسٹ گارڈز نے 11 پناہ گزینوں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ زندہ بچنے والوں میں ایک کم سن بچہ بھی شامل ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈز کے مطابق ڈیڈیم کے فارما کونسیسی جزیرے پر 5 افراد زندہ پائے گئے ہیں۔ کوسٹ گارڈز حکام کے مطابق کشتی پر 31 پناہ گزین سوار تھے۔ ترکی اور یونان کے ساحلی محافظوں کی جانب سے تلاشی اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، جہاں بھی ظلم کے خلاف مزاحمت ہو، حبیب جالب کی شاعری کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ عوامی شاعر حبیب جالب کی 30ویں برسی کی مناسبت سے دیکھتے ہیں لاہور سے اسکا مقصود کی یہ رپورٹ۔ چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب 24 مارچ 1928 کو بھارت کے ضلع ہوشیارپور کے ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے ہی مشق سخن شروع کر دی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ گئے اور کچھ عرصہ معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک میں کام کیا۔ یہی وہ دور تھا جب حبیب جالب نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کے محسوسات حبیب جالب کی نظموں کا موضوع بن گئے۔ حبیب جالب نے 1956 میں لاہور میں رہائش اختیار کی۔ اس دوران انہوں نے ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت میں متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ انہیں مشہور پاکستانی فلم زرقا کے لیے لکھے گئے گانے پر بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے۔ وہ معاشرے کے نباز تھے، معاشرے کی کجیوں کو، خرابیوں کو وہ ان کو آئینہ کرتے تھے۔ وہ سماج کے ہر اس پہلو سے لڑے جس میں آمریت کا رنگ جھلکتا تھا۔ حبیب جالب کی نظموں کے 5 مجموعے برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، گوشے میں قفس اور ذکر بہتے خون کا شائع ہو چکے ہیں۔ حبیب جالب 12 مارچ 1993 کو 65 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ حبیب جالب کا کلام آج بھی ہر کسی کے لیے حوصلے اور جوش و ولولہ کی صورت میں زندہ ہے۔ اسکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت نوشہرہ میں 1300 ایکڑ پر 300 ایکڑ پر سرسوں کی فصل تیار ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے فضل نبی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضل، اوور ٹو یو۔ حکومت پاکستان نے ہودینی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کاشتکاروں کو تیلدار اجناس کی پیداوار کی جانب راغب کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ایمرجنسی پروگرام کے تحت مفت بیج دیا جا رہا ہے، اور پی ایس ڈی پی کے اس پروجیکٹ کے تحت اس سال نوشہرہ کے کاشتکاروں کو 300 ایکڑ کے لیے سرسوں کا بیج دیا گیا ہے، جہاں پر اس وقت یہ فصل مکمل طور پر تیار ہے۔ ایک جانب سرسوں کے یہ خوبصورت پھول موسم بہار کی نوید سنا رہا ہے، تو دوسری جانب یہ ملک کی معیشت کے لیے کافی مفید ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق کاشتکاروں کو تیلدار اجناس کی پیداوار کی جانب راغب کرنے کے لیے سبسڈی کے تحت کاشتکاروں کو بیج دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ملک کی خودینی تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے۔ شکریہ فضل نبی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ملک بھر کی طرح لودھرا میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران 2,40,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ ڈاہا سے۔ لودھرا ضلع کو سرسبز بنانے کے لیے موسم بہار کی شجرکاری جاری ہے۔ اس مہم کے دوران ضلع لودھرا میں 2,40,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر اور اے سی لودھرا اشرف صالح نے کنال ویو پارک میں پودا لگا کر کیا۔ ضلعی حکومت کی جانب سے ضلع بھر میں 2,40,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
हम लोग आम शहरी भी इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरी जिला लोधरा के दूसरे शहरियों से भी अपील है कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शजरकारी मुहिम में मकामी माहौल से मुताबिकत रखने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं जो कम पानी और ज़्यादा दर्जा हरारत में नशोनमा पा सकें। जिला भर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। ये मौसम शजरकारी के लिए बेहतरीन है और इसमें लगाए गए पौधे बेहतर नशोनुमा पाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अपने कल को महफूज बनाना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम जश्न बहारा मेले के आखिरी रोज़ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया। मज़ीद बताएंगी वर्दा सलीम। सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल और वर्जिश बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। तालीम और तरबियत के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों के जरिए नौजवान नस्ल को तफरीह के बेहतरीन मौके मुयसर करना जरूरी है। लाहौर में 5 मार्च से जारी जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आज आखिरी रोज खेल के नाम रहा, जिसमें तमाम स्कूलों कॉलेजों समेत दीगर लोगों ने भी खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाले इस खेल मेले में साइकिल रेस, मैराथन रेस, फन रेस और व्हील चेयर रेस के इवेंट्स शामिल थे। सबके लिए मैसेज यही है कि इसको आप इसमें पार्टिसिपेट करें, फैमिली रन में स्पेशली, और इस स्प्रिंग फेस्टिवल का हिस्सा बने। हर बंदे को एक एक्टिविटी मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी महसूस हो रही है। ऐसे इवेंट होने चाहिए। जश्न बहारा के इस खेल मेले में लोगों ने भरपूर शिरकत की और कहा कि इस तरह के इवेंट्स नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत सरगर्मियों का बाइस बनते हैं। जश्न बहारा के मौके पर ये चीज़ रखी है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैराथन में 42 किलोमीटर जो है वो हमारे प्रोफेशनल बच्चे हैं वो करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड फन रेस पे हूँ और वो भी खास करके वुमेन के लिए। एक अच्छी एक्टिविटी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मैराथन और साइकिलिंग रेस, जिससे पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो ऊपर का सामने आता है। हम यहाँ पे जश्न बहारा के मेले के सिलसिले में आए हैं और यहाँ पे हमने रेस में पार्टिसिपेट किया। लाहौर जो सकाफती सरगर्मियों का हमेशा मरकज रहा है, जहाँ इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद से तफरीह के मौक़ों के साथ साथ अवाम को अपनी सकाफती और तहजीबी सरगर्मियों से भी आगाही हासिल होती है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली जश्न बहारा के रंगारंग तकरीबात में जिस तरह अहले लाहौर ने हिस्सा लिया है वो इस बात का सबूत है कि लाहौर लाहौर है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और लाहौर है। जश्न बहारा फेस्टिवल की ही कुछ और बात करें। इसी हवाले से फैसलाबाद ज़रिए यूनिवर्सिटी में भी फैंसी बर्ड शो का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। जश्न बहारा के सिलसिले में ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैंसी बर्ड शो मुनाकिद हुआ। बर्ड शो में सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ और नायाब नस्लों के खूबसूरत परिंदे रखे गए। इन परिंदों में कूंज, फरमंगू, ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर मोर, मग, ग्रे पैरट, रा पैरट, दखनी तीतर, वाइट सिल्की, गोल्डन क्विचन, ऑस्ट्रेलियन पैरट, फिंच स्पैरो और लव बर्ड शामिल थे। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी परिंदों की रफाकत से खूब लुत्फ उठाया। और मैं सबसे यही कहूँगी कि हर दफ़ा ये जो शो है ये इसका इनेकाद किया जाता है कि यहाँ पे ज़रूर आए आप लोग, ताकि आप डिफरेंट जो है बर्ड्स की वैरायटीज़ और ब्रीड्स और नेचर के बारे में अवेयर हो सके। काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स हैं यहाँ पर, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं और उनके हवाले से मुझे अवेयरनेस मिली। बर्ड्स ऐसे जो है शोज़ होने चाहिए, तो इसलिए बच्चे कल से लगा हुआ शो। माशाल्लाह हम कल भी आए थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे पिजन्स हैं, मुर्गियाँ हैं, मोर हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन ने परिंदों से मुतालिक लोगों को दिलचस्प मालूमात भी फराहम की। परिंदों से मोहब्बत इंसानी फितरत का हिस्सा है। जश्न बहारा के मौका पर फैंसी बर्ड शो का इनेकाद करके इस फितरी ज़ौक़ की तस्कीन का उम्दा बंदोबस्त किया गया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब रुख करें भावलपुर का, जहां पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कई दहाइयों से असातिज़ा, मुहक्किकीन और तालिब इल्मों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे अब्दुल्ला मुख्तार अपनी रिपोर्ट में। गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी में होता है। इमारत का संग बुनियाद सर रूफस डैनियल इसाक वायसराय हिंद ने 8 मार्च 1924 को रखा। लाइब्रेरी की इमारत अतालवी और इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार नमूना है। क़याम पाकिस्तान से चंद माह कबल मुश्ताक अहमद गुरमानी वज़ीर आज़म रियासत बहावलपुर ने लाइब्रेरी का नाम सादिक रीडिंग लाइब्रेरी की बजाय सेंट्रल लाइब्रेरी रख दिया। लाइब्रेरी को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। It's good to see that buildings that were built, say, probably a century or more ago, are still being used and kept up
and maintained so nicely. सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर के लिए एक बहुत कीमती असासा है। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, कोई भी आके यहाँ पढ़ सकता है। बहावलपुर में बहुत बेस्ट प्लेस है स्टडी के लिहाज से। गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी 3 खूबसूरत जाज़ब नज़र इमारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबाजात कायम किए गए हैं। इस लाइब्रेरी में कुतब और दीगर मुतालियाती मवाद की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी भी हासिल है। इसे एज ए कम्युनिटी लर्निंग सेंटर भी हमने मुतारफ करवाया है। सेंट्रल लाइब्रेरी में खवातीन, बच्चों और नाबीना हजरात के लिए अलग अलग सेक्शंस भी मौजूद हैं। बहावलपुर में मौजूद ये तारीखी सेंट्रल लाइब्रेरी इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की चंद अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मौजूदा दर्जा हरारत में इजाफे के बायस पोलन की शरह में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल पोलन सीज़न जल्द शुरू होने की तवक्को है, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मार्च के दूसरे हफ्ते के दौरान पोलन की शरह उरूज पर पहुँचने का इम्कान है। पोलन एलर्जी में मुब्तला अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही, और आपको आगाह करें कि मिट्टी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, बेनज़ीराबाद भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, टंडोजाम में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि छोर में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।